Hello students, myself Deepak Zade. In this lecture we'll solve problem of parallel force system. Okay, you know how to find out resultant of parallel force system. Step number 1 is what? R equal to maybe summation of Fx or R equal to summation of Fy depending on direction of given forces. Second step क्या रहता है? Varignon's theorem of moments will apply and will find out point of application of resultant. In this problem, here 100 Newton vertically downward, 50 Newton upward, 120 Newton downward. एक couple है 40 Newton meter clockwise. This load what is acting at C is 60 Newton per meter and is decreasing and becomes 0 at D. Such load is called as what? Uniformly distributed load. How many types of distributed loads are there? Two types. एक रहता है uniformly distributed load, सेकेंड रहता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ये वेरी हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. नाउ व्हेनेवर एनी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज गिवन, व्हाट विल डू? विल फाइंड आउट इक्विवेलेंट पॉइंट लोड. इक्विवेलेंट पॉइंट, ये जो ट्रायंगुलर मिस यूवीएल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स. नाउ सिंगल इक्विवेलेंट ऑफ दिस लोड एक्ट्स वेयर 1/3 ऑफ इट्स स्पैन. Span means what? Distance between C and D is 3 meter. इसका 1/3. From where? From maximum load. Maximum load is at C. Magnitude of load is what? Half of base into height or area of triangle. Half of base 3, height 60. Clear? So I will draw here one equivalent load diagram. This is called as what? Equivalent load diagram. This question is given, figure is given in एग्जाम से, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू? इक्विवेलेंट लोड डायग्राम. इक्विवेलेंट लोड डायग्राम में सी हियर हाउ विल ड्रॉ? ये नंबर 1, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज व्हाट? डी, ये पॉइंट ई है एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? बी. ऑल लोड्स व्हिच आर एक्टिंग रिमेन्स एज इट इज. मीन दिस लोड इज व्हाट? 100 न्यूटन, राइट? ये जो है दिस वन इज व्हाट? 50 न्यूटन एज इट इज. अपवर्ड. दिस वन इज व्हाट? डाउनवर्ड at B. How much? 120 Newton. This point is what? E. This point is what? D. Now at D there is one couple. The couple will represent as it is 40 Newton meter. Now ये जो distributed load है, it is acting in between CD. Equivalent point load is where? 1/3 from maximum. 1/3 of 3 meter is what? 1 meter. Means here I will represent ये 1 meter, तो remaining becomes what? 2 meter. Magnitude of load, तो in uniformly varying load, see what is the direction of arrowhead? Downward है, तो this load is what? Downward. Magnitude of load half W into L. W is what? 60. L is what? 3. Means how much will get? ये कितना हो गया था? 90 न्यूटन ना? करेक्ट? इज दिस राइट? ये 30 हुआ, 30 into 3, 90. Means equivalent load of this UDL I represented. All other forces as it is, distances as it is. Now all are in vertical direction. What is the first step in finding resultant of parallel force system? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? तो सब फोर्सेस कैसा है? वर्टिकल है ना? वर्टिकल मीन्स व्हाट विल डू? विल यूज विच इक्वेशन? आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अज्यूमिंग अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव. चलो फर्स्ट फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड -100. नेक्स्ट कैसा है? 90 डाउनवर्ड माइनस, देन 50 न्यूटन अपवर्ड है, राइट? पॉजिटिव. एंड 120 न्यूटन डाउनवर्ड. तो यू विल गेट व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ये 50 इधर गया तो कितना हो गया? 140 एंड 120 -40 -140 एंड -120. चेक करो तो कितना आता है? -260, राइट? -40 140 120 -260 ना? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? कि ये जो 260 न्यूटन लोड है रिजल्टेंट है, एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ
नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ गया. टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, अगेन आई विल ड्रॉ सेम रॉड, राइट. ये आपका रॉड है, ये एंड बी, दिस एंड इज ए, एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस इज व्हाट, 260 न्यूटन मीटर. Point of application, we don't know. We'll assume somewhere कि this is my R, this location you have to find out. R magnitude is what, 260. What is the distance from say end A is what, x. How will get distance x? Applying Varignon's theorem. But आपको एक important बात है कि whenever we'll apply Varignon's theorem, first we'll find out sum of moments. Direction of sum of moment and direction of moment of resultant must be same, then only you can say it is equivalent. इन इसका इफेक्ट अगर क्लॉकवाइज है तो इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट जो है, मूवमेंट जो है, राइट, ड्यू टू आर मस्ट बी क्लॉकवाइज. इनका अगर सम ऑफ मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, देन यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट. व्हाट विल डू, सम ऑफ मूवमेंट्स निकालते हैं फर्स्ट, राइट. तो सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव. अबाउट ए अगर मूवमेंट लेते तो मूवमेंट ऑफ 100 0, मूवमेंट ऑफ 90 अबाउट ए क्लॉकवाइज माइनस 90 इंटू व्हाट डिस्टेंस, ये 2 है एंड ये 1 है, मीन्स हाउ मच, 3. ये जो कपल है कैसा है, क्लॉकवाइज दिया है न्यूटन मीटर में, मीन्स क्लॉकवाइज है तो माइनस, एज इट इज मैग्नीट्यूड विल राइट. क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस. मोमेंट ऑफ 50 अबाउट ए कैसा आना चाहिए, एंटी, समझ में आता है ना डायरेक्शन. देखो, होल्ड इट एट ए, फोर्स इज एक्टिंग एट ई, अपवर्ड, किधर गया रॉड, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, पॉजिटिव. तो व्हाट विल गेट, 50 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस, 2 3 2, 5 plus 2 how much, 7. and what is the moment of 120, clockwise 120. what distance, तो ये हो गया 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 is what, 9. करेक्ट, चेक करो. हाँ, मोमेंट ऑफ 100 0, तो आई नॉट रिटर्न टर्म. मोमेंट ऑफ 90 क्लॉकवाइज 90 इंटू 2 plus 1 3, माइनस 40 क्लॉकवाइज कपल है, 50 इंटू 7, ओके, एंटी क्लॉकवाइज है, 120 इंटू 9. चलो फाइंड आउट दिस वैल्यू. कुछ तो माइनस आंसर आना चाहिए. हाउ मच यू आर गेटिंग, 1040 आता है क्या, 1040 न्यूटन मीटर. ये निगेटिव आया मीन्स व्हाट, दिस मोमेंट इज व्हाट, क्लॉकवाइज. ओके, नाउ चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज है, इसका मोमेंट कैसा आता है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए क्लॉकवाइज है ना, 260 into x clockwise. That means you can equate now. How will equate? Applying Varignon's theorem of moment. Sum of moment about which point A, taking what, anti-clockwise moment positive, equal to moment of resultant about A, taking anti-clockwise moment positive. A क्या है, minus 1040. Moment of R is what, minus R into x. R is what, 260 into x. दोनों इधर माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज सेम. एंड ये सेम ही रहना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, अदरवाइज दैट विल नॉट बिकम रिजल्टेंट. माइनस माइनस गया, ये तो 4 आना, 4 ना, 250, हाँ ये 4 हो गया, राइट. तो x इज व्हाट, 4 मीटर. क्लियर, सिंपल ना. यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ फोर्सेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, अप्लाइंग Varignon's theorem, राइट. Varignon's theorem में क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कैसा रहना चाहिए, सेम. ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय.